morning, students. As we have discussed about the force and the laws of the motion, in which we have discussed about the three laws of the motion. हमने उसमें तीन laws किए हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या कहा है कि कोई भी चीज है, it will remain in its state whether it is in the rest or motion until or unless an external force is applied on it. जब तक उसके ऊपर कोई भी external force नहीं लगाई जाएगी, वो जिस स्टेट में उसी में रहने की कोशिश करता है. That is called inertia. The first law of motion is also known as law of inertia. Second law of motion में हमने क्या कहा था कि momentum is equal to mass into velocity and rate of change of momentum is directly proportional to the force applied on that object in that direction in which force is applied. यानी F is equal to ma. वो क्या हमने थर्ड लॉ में क्या कहा था कि action and reaction are equal and opposite in the direction. Means एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है, दूसरा ऑब्जेक्ट उसके ऊपर सेम फोर्स लगाता है विद द सेम मैग्नीट्यूड बट ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन. The velocity that will be called the recoil velocity. If a gun is fired, a bullet is fired from a gun, then the gun will move in the backward direction. That will be called the recoil velocity. जो backward direction में गई तो उसको क्या बोलते हैं? recoil velocity बोलते हैं, recoiling of the gun बोलते हैं. आप देखोगे कि बुलेट तो बहुत तेज स्पीड से आगे की साइड गई, गन है वो थोड़ी सी पीछे की साइड में गई. बिकॉज़ F is equal to ma पढ़ा था हमने उसमें. हमने क्या कहा था? FAB is equal to minus FBA. यानी magnitude of the force applied will be same. Force applied दोनों साइड में सेम होगी, बट फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. कि जो बुलेट है उसका मास कम है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा होगी. हाई स्पीड से वो क्या करेगी? आपकी मूव करेगी. But in case of the gun, it is having the high mass, much more mass as compared to the bullet, so it will move little backward direction. But if you will calculate the force applied in the gun, मान लो मैं इसको gun मान के चलूं और मैं इसको bullet मान के चलूं, that will having the same force. Force same होगी, mass अलग अलग होने की वजह से speed उसकी velocity है वो आपकी क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है, जिसकी वजह से जो है गन आपके पीछे की डायरेक्शन में कम जाएगी और जब पीछे की डायरेक्शन में बैकवर्ड मूव किया दैट विल बी नोन एज योर रिकॉइल वेलोसिटी. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्व का मतलब होता है सेम या कांस्टेंट. कांस्टेंट या सेम. इसका मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी. अंडरस्टैंड? मैं यहाँ लिखूं मास इनटू वेलोसिटी. इसका P is equal to mv. हम यही है. It may be your initial momentum or it may be your final momentum if there will be change in the velocity. So what will be the law of conservation of the mass? The law of conservation of the momentum says that if the initial momentum of the object will be always same to the final momentum of the object before colliding and after colliding. For example, इसको हम कैसे explain कर सकते हैं? For example, we are having the two balls. We are having the two balls A and B. Listen carefully. We are having the two balls A and B. The mass of the ball is ma and mass of the ball will be equal to mb. Both are moving in the same direction. Means if it is moving in this direction with the initial velocity ub and it is moving in this direction with an initial velocity uk. Before collision means हम कहें before collision. Collision का मतलब टकराने से पहले. कब टकराएंगे? When UA is greater than UB. Means if the velocity, initial velocity of the object A or the ball A is more than that of the ball B. बॉल बी से ज्यादा होगी, यानी एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक के पीछे दूसरा चल रहा है, आगे वाला स्लो चल रहा है, पीछे वाला स्पीड से चल रहा है, तो जो पीछे वाला वो आगे वाले से क्या करेगा? टकराएगा. Then they will strike each other. There will be a collision. Collision यहाँ नहीं बनेगा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे बना देती हूँ. They will strike each other, and after striking, what will happen? Both are moving in the same direction with in final velocity VA. For object A and for B with your B, right? इसका मतलब क्या है कि दो ऑब्जेक्ट है A और B. आपकी बॉल लगा लो या कोई भी ऑब्जेक्ट लगा लो,
डायरेक्शन में चल रहे हैं, बट फर्क क्या दोनों के अंदर, मास उनका कुछ भी हो सकता है। जो इनिशियल वेलोसिटी किसकी, ए ऑब्जेक्ट की, वो किससे ज्यादा, बी से ज्यादा। और जब एक ही डायरेक्शन में मूव करने लग रहा है तो जो ये ऑब्जेक्ट है ए है, दैट विल कोलाइड, दैट विल स्ट्राइक, उसके साथ टकराएगा, और टकराते वक्त इनकी जो पोजीशन होगी ये होगी, और पोजीशन के बाद दे विल मूव विद अनदर वेलोसिटी दैट विल बी नोन एज va, एंड vb मींस चेंज इन द वेलोसिटी। तो व्हाट विल बी द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, कि टकराने से पहले दोनों का जो मोमेंटम था और टकराने के बाद जो दोनों का मोमेंटम होगा दैट विल बी, इसका मतलब ये है कि the sum of the momentum of the two objects before collision will be equal to the sum of the momentum of the two objects after the collision। यानी जो इनका मोमेंटम होगा वो किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। तो बिफोर कॉलिजन, टकराने से पहले इनिशियल मोमेंटम पी आई ए ऑब्जेक्ट कितना, एम ए यू ए, राइट, किसके बराबर होता है, क्योंकि मोमेंटम किसके बराबर है, मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, ए ऑब्जेक्ट की मास इसका m है, एम ए यू है, क्या होगा इनिशियल मोमेंटम। और बिफोर कोलिजन इनिशियल मोमेंटम ऑफ b किसका, b ऑब्जेक्ट का, तो मैं लिख सकती हूँ p i b इज इक्वल टू m b u, राइट। ये तो हो गया पहले। अब ये जब टकराए आपस में, टकराने के बाद क्या आएगा आपका, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन जो फाइनल मोमेंटम होगा पी एफ ए, यानी फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए, दैट विल बी द मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, राइट, किसके लिए, ए ऑब्जेक्ट के लिए। और आफ्टर कोलिजन बी ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, पी बी एफ, दैट विल बी इक्वल टू एम बी इनटू वी। अंडरस्टैंड, कितना समझ में आया। देखो कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जो अलग अलग वेलोसिटी के साथ एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो वो आपस में टकराएंगे, और टकराने के बाद एक ही डायरेक्शन में फिर से मूव करने लगे विद सम वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस। जब चेंज इन वेलोसिटी होगा तो वहां पे एक्सेलरेशन होगा विद टाइम टी, टाइम टी के लिए टकराए और आपका क्या होगा, अनदर वेलोसिटी के साथ चल रहे। तो कोलिजन से पहले इनिशियल मोमेंटम जो है मास इनटू वेलोसिटी, और किसका, ए ऑब्जेक्ट का और बी ऑब्जेक्ट का, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, ये ए ऑब्जेक्ट के लिए, ये किसके लिए, बी ऑब्जेक्ट के लिए। अब जब टकराने के बाद जब उनका फाइनल मोमेंटम होगा, इसका मास इनटू वेलोसिटी, मास ma इनटू फाइनल वेलोसिटी mv, उसी तरह से pvf इज इक्वल टू mv इनटू vv। तो दैट विल बी द बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। एंड यू नो वेरी वेल कि फोर्स अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, according to the third law of motion, Fa is equal to minus Fba. What does it mean? Means when they collide with each other. Means when they collide with each other, this applied the force on the object B. किसने force लगाई? A ने किसके ऊपर लगाई? B के ऊपर। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन। Right? उसी तरह से according to third law of motion, this B also applied the force on the object A, but it will be in the another direction. इसने इस डायरेक्शन में लगाई है, इसने इस डायरेक्शन में लगाई, तो that will be negative to each other. But according to Newton's third law of motion, the force applied by an object to the other object is equal and opposite in the direction. यानी action and reaction are equal and opposite in the direction. अब FAB निकालना है और FBA निकालना, तो कैसे निकलेगा? Rate of change of momentum, rate of change of momentum of object A on the B and the B on the A, right? तो इसको रब कर दो। यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। राइट, तो FAB का मतलब है force applied by the A on the B, so that will be final minus initial, final momentum minus initial momentum of A. फाइनल मोमेंटम हमारा क्या था? M A B A minus M A U A, राइट।
डिवाइडेड बाय में t। तो फोर्स इसके बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय में t। तो रेट ऑफ चेंज फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय में t। ये किसका निकल गया? a b। अब b का किसके ऊपर? a का। फाइनल माइनस यानी p f b माइनस p i b अपॉन t, राइट। हमने क्या निकाला था? p b f, ये निकाला था m b b b माइनस m a सॉरी m b u b डिवाइडेड बाय में t, राइट। ये किसका निकल गया? फोर्स अप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट b ऑन द a, और यदि फोर्स अप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट a ऑन द b। अब अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन FAB is equal to FBA, यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है बट अपोजिट इन द डायरेक्शन। तो ये कितना देगा? MA BA माइनस MA UA डिवाइडेड बाय में T is equal to MB BB माइनस MB UB अपॉन में T। यहाँ किसका निशान लगाएंगे? माइनस। T से T कैंसिल, तब क्या बचा आपका? MA BA माइनस MA UA is equal to माइनस MB BB माइनस माइनस मल्टीप्लाई MB और U, राइट। अब ये माइनस वाला इधर लिया, ये माइनस वाला उधर ले जाओ, तो इससे क्या होगा? MA BA प्लस MB BB is equal to MA UA प्लस MB UB। आपको ए बी याद नहीं रहता तो आप 1 2 भी लगा सकते हो, यहाँ पे 1 2 भी इजी रहेंगे आपके लिए लगाने के लिए। अब ये देखो फाइनल यानी आफ्टर कोलिजन, इज इक्वल टू ये किसका? इनिशियल मोमेंटम दैट विल बी बिफोर कोलिजन, राइट। So what does it mean? That will verify the law of conservation of the momentum. कि the momentum, total momentum of the object before the collision will be always equal to the total momentum of the object after the collision. Is there any doubt related to this? This is one of the important topic. September में जब तुम्हारे वैसे एग्जाम हुए तो ये जरूर आता है इस टाइप का। Is there any doubt related to this topic? All are sleeping. Very good. मैं भी देखो कितने स्टूडेंट्स हैं जो सो रहे हैं। How many students are there? All were sleeping. Very good. तो किसी को कोई भी डाउट भी ऐसे रिलेटेड? बढ़िया है। What is the doubt? There is no doubt. Okay. To explain that before collision and after collision, it will be in the opposite direction. To explain that there are two activities given in your book. What you have to do with these activities? Who said it? Worship. Man, please repeat this again. Worship, I will send the recorded. You will see there. If you will not able to, then I will tell you again. Okay? Yes. So to explain that conservation of momentum, there is an activity. What activity is there? You have to take a balloon. आपको balloon लेना है और साथ में आपको टेप चाहिए, थ्रेड चाहिए उसको टाई करने के लिए, और आपको एक स्ट्रॉ चाहिए। What you have to do? You have there will be a nail. यहाँ पे एक नेल है, उसको फिक्स किया गया हुक के साथ। उस हुक में से एक वायर निकालिए और उसको थ्रेड को ऐसे कर दो, ठीक है। There will be a straw. ये आपकी क्या है? स्ट्रॉ, right? There will be a balloon.
that balloon should be inflated and it will be attached to it, and there will be a tape and the thread is there. What will you have to do? If when your friend or you just pick that, just remove the tape or the thread from here, it will move in that direction. ये यहाँ से किस डायरेक्शन में जाने लगेगा? यहाँ पे। इसको मैं दिखाऊं तो थोड़ा सा ऐसे कर सकती हूँ कि ये इसके साथ अटैच, right? So it will move in this direction and the straw will move in this direction opposite to that direction, but the mass or weight depending upon that. कैसे बताया मैंने? F is equal to ma. यदि एक का मास ज्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी? उसकी कम होगी, चेंज इन वेलोसिटी कम होगी और एक्सेलरेशन उसके अंदर क्या होगा? कम होगा. यानी if this balloon will move in this direction, the straw try to move in this direction opposite to that, that is known as recoil. तो क्या बोलते हैं? recoil. Okay. एक एक्टिविटी ये दी हुई है. दूसरी एक्टिविटी में क्या दिया है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब दी हुई है. जैसे there is a test tube and there is a cork fixed in that having the some water in it. Right? इसके अंदर कुछ पानी डाला है. इसको हमने क्या करा? हीट करना शुरू किया. ऐसे करके हीट करना शुरू किया और इसको हमने किस पे लगा रखा है? एक स्टैंड के साथ फिक्स कर रखा है. स्टैंड पे फिक्स किया है यहाँ पे इस तरह से. And when you heat that water, the steam will be formed in that, and due to steam formation, it will exert the pressure on the cork. ये जो आपका cork है, इसके ऊपर क्या लगाएंगे? pressure लगाएंगे, and that cork will move in this direction. It will move out, and it will move in this direction. When it will move this direction, the cork will also exert the same pressure. Yes, cork will move in this direction. जैसे इस direction move करेगी, तो this cork will also exert the pressure on the test tube, and this test tube will move in this direction a little, depending upon the same mass and acceleration. What does it mean? कि जब आप इनका मोमेंटम देखोगे, पहले देखोगे और बाद में देखोगे, that will remain the same. तो उसी के बेस पे हम क्या कर सकते हैं? इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व आउट कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको सॉल्व करने बता रही हूँ. So there will be a force, यानी FAB is equal to minus FBA. एक तो आपको ये चीज याद रखनी है और एक जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, MA UA plus MB UB is equal to MA BA plus MB UB. Right? Before collision and after collision. ये नहीं याद आता तो M1 U1 plus M2 U2 लिखिए या M1 V1 लिखिए plus M2 V2 लिखिए. कोई दिक्कत नहीं. You will use the formula A or B or 1 2. हम न्यूमेरिकल किसी से भी कर सकते हैं. A भी मान लो या 1 2 मान लो. So you can easily sort out the numericals related to the law of conservation of the momentum. So one or two numericals will be discussed today. Numerical is that बुलेट दिया मास. अब M1 मान लीजिए या MA मान लीजिए 20 ग्राम. Is horizontally fired with a velocity of 150 meter per second from a pistol of mass 2 किलोग्राम. इसका मास है 2 किलोग्राम. अब ये 20 ग्राम है तो इसको किसमें डिवाइड कीजिए? 1000 से डिवाइड कीजिए तो 0.020 किलोग्राम. राइट? आपका निकल गया. अब देखो इनिशियल वेलोसिटी इन्होंने क्या है कि फायर्ड विद अ वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड. व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल? यानी इनिशियली आपकी गन और जो बुलेट थी दोनों किसमें थी? रेस्ट में. यानी उसने V1 कितना दिया है? 150 मीटर पर सेकंड. और आपको V2 क्या करना है? कैलकुलेट करना है. V2. राइट? और एक गन है, बुलेट का मास 20 ग्राम है, बुलेट का मास 2 किलोग्राम है. फायर्ड ऐसे पकड़ के फायर किया. शुरू में दोनों जो बुलेट थी और जो गन थी that are having the very at the rest. So at that time U1
या UA मान लो एंड U2 बोथ आर 0। V1 आपको 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गई और गन आपकी कितने स्पीड से पीछे गई ये आपको बताना। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। अब ये मास कितना है 0.02, राइट। इनिशियल वेलोसिटी कितने 0 प्लस ये मास कितना 2 into 0, राइट। अब m1 कितना दिया हुआ आपको 0.02 into 150, इसके डिवाइड बाय रेशियो से 1000 कर लीजिए आप, 20/1000 इजी रहेगा आपको करना। प्लस m2 आपका 2 दिया है और v2 आपको पता है, ये आपका 0 है पूरा का पूरा, यहाँ से 2 0 कैंसिल, ये 5 और ये 3, तो 3 plus 2v2, राइट। अब ये 3 है इसको यहाँ ले आइए माइनस 2v2, तो v2 किसके बराबर हो गया -3/2 इज इक्वल टू -1.5 मीटर पर सेकंड। अब ये देखो जो आपकी बुलेट है वो 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे गई, लेकिन जो आपकी गन है रिकॉइल वेलोसिटी वो कितने से गई 1.5 मीटर पर सेकंड। यदि आप इनका टोटल मोमेंटम निकाल लोगे, यानी इसको आप 2000 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे, both are same but in opposite direction, understand? So what is that? So you can easily calculate the recoil velocity of an object, understand? Right. No doubt is there. One more numerical is there related to that. Yes, a girl of mass 50 kilogram jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary car. यानी गर्ल है उसका मास कितना 40 किलो, moves with a velocity of 5 meter, उसने जंप किया यानी पहले क्या उसने 5 मीटर पर सेकंड, राइट। onto a stationary car m2 having the mass 3 किलोग्राम, उसका कार्ड का मास कितना 3 किलोग्राम और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या 0, क्योंकि उसने कहा स्टेशनरी कार्ड पे, यानी मैं 40 किलो की किसी चीज के ऊपर कूद रही हूँ कितने की स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड की, और वो वहां पे खड़ा रहता है और उसका जो मास है वो 3 kg है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी 0 होगी। assume that there is no external unbalanced force working on that, आपको v कैलकुलेट करना है, यानी दोनों की दोनों, यानी v1 is equal to v2। why v1 is equal to v2? ये आपका कोई भी कार्ड है जिसके ऊपर आपके क्या लगे हुए व्हील लगे हुए हैं, इसके ऊपर कोई भी गर्ल है वो ऐसे आपकी इसके ऊपर खड़ी हुई है, जंप किया, जंप करने के बाद ये कार्ड भी चलने लगा और ये कार्ड के ऊपर खड़ी होकर चलने लगी, तो दोनों की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी आपकी सेम, अंडरस्टैंड? तो दोनों की वेलोसिटी आपकी क्या होगी सेम होगी, और आपको वो क्या करनी है कैलकुलेट करना है, यानी आपको v कैलकुलेट करना है। m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2, राइट। m1 कितना 40 किलोग्राम, मास कितना वेलोसिटी कितना 5 प्लस 3 into 0, अब m1 plus m2 into v कर सकती हूँ मैं, why I am writing v? because v is equal to v1 is equal to v2, और v1 v2 is equal to तो किसके बराबर होगा v के, क्योंकि वो स्टेशनरी कार्ड पे खड़ी थी और स्टेशनरी कार्ड पे जैसे कूदती वो दोनों क्या हो गए चलने लगे, अंडरस्टैंड? तो ये कितना है 200 प्लस 0, ये मास कितना है आपका 40 प्लस 3 into v, तो v किसके बराबर हो गया 200 डिवाइडेड बाय में 43 मीटर पर सेकंड, अंडरस्टैंड? That will be the numericals related to the law of conservation of the moment. Next numerical is there. Two hockey players of opposite team. Hockey बहुत सारे students खेलते हैं, उसमें आपका बताना है कि दो hockey players हैं और both are playing for the opposite team, trying to hit a hockey ball and ground. One is having the mass 60 kg. एक का mass कितना है 60 kg है and was moving with a velocity of 5 meter per second. u1 is equal to 5 meter per second.
दूसरे का जो मास है that will be equal to 55 kg moving with a velocity of 6 meter per second towards the first layer. In which direction what will be their move after become entangled? एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे और उनके बीच में किस वेलोसिटी से वो मूव करेंगे, यानी v1 इक्वल टू v2 इज इक्वल टू यू हैव टू कैलकुलेट, यानी v1 v2 किसके बराबर हो जाएगा, आपको दोबारा से v के बराबर होगा। क्यों, दो प्लेयर है, जब आपस में एक इस डायरेक्शन में सारा एक इस डायरेक्शन में सारा, वो 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड सारे 6 मीटर पर सेकंड का एक पोजीशन आई जिसमें एक दूसरे के साथ क्या हो गया, एंटेंगल्ड हो गए। एंटेंगल्ड होने के बाद उनकी वेलोसिटी कितनी है, यू हैव टू कैलकुलेट दैट। ओके, सेम फार्मूला यू विल यूज m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। ये कितना है, 60 into 5 plus 55 into 6 is equal to m1 plus m2 into v2। ये कितना हो गया, 60 plus 55, ये कितना हो गया, 300 plus 330, तो ये कितना हो गया, 630 डिवाइडेड बाय में कितना हो गया, 111 is equal to, right? So you will easily able to calculate the numericals related to the law of conservation of the moment. Okay. Today I am going to class there. Next will be in your